स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है इंग्लिश एंड कॉमर्स पाठशाला में। मैं महेश नागर। जैसा थंबनेल मैंने बनाया है कि आपको इंग्लिश अगर सीखना है तो इनिशियल लेवल पर हमें क्या करना चाहिए फॉर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। So let me tell you some important things which are never told by any class or any person who's teaching spoken English. So at very first I'm just going to tell you a short story that is my own experiences, so that these experiences will definitely help you in your spoken English. So at very first, why I am making this video in this background, at in yesterday's video I already told you that why I stay here. देखिए, सिंपल सी बात है। जो पीछे का बैकग्राउंड है इसको आप देख सकते हैं। दिस इज़ द एग्रीकल्चर फील्ड, ट्रीज एंड ऑल दोज थिंग्स. So that things proven that I am not a person who belongs to a very rich family, or you can say very educated family, in which many people are comfortable with English. My father is a farmer and I stayed and studied in my village, and at very first I'm just going to tell you that my initial education, I mean to say my primary education, middle education and high school education I got from government school. And you know that the prior, I mean to say कि जो पहले system हुआ करता था, education system, where there were no English from first class. So I myself learned alphabet of English from class 6 onward. When I was admitted in class 6, very first I introduced with the alphabet of English. ठीक है, ABCD ये मैंने 6th क्लास में आकर सीखा था. And today I am a teacher of English, and I'm also in front of you. I'm speaking in English. ठीक है, मैं इंग्लिश में बात भी कर रहा हूँ. ठीक है, I'm very comfortable with English, but I can't say that I am perfect in English. इंग्लिश में मैं परफेक्ट हूँ ऐसा मैं नहीं कह सकता, but yes. ठीक है, आप देख रहे हैं ये सारा बैकग्राउंड, ये हवा, ये सारी नेचर. ठीक है, why I choose this place? I just want to show you that the person who born in a very rich family, or in the family who can afford high level classes or costly classes, I never attend any spoken English class in my life. But after all, I can speak in English, I can teach English, I can write English. ठीक है, मैं बिल्कुल बैकग्राउंड जैसा है मेरा, बिल्कुल विलेज का बैकग्राउंड है. एंड यहाँ पर कोई भी टीचर उन दिनों नहीं हुआ करते थे. मैं आपको बता दूँ, इन 2003 आई पास माई हाई स्कूल एग्जामिनेशन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल. Then I went to Indore to get my higher education. So I got admission in a school, in a higher secondary school, where I continued my study as a Hindi medium student. Then I got my 12th, and then after I got admission in the college. But I got the admission in college, but I never went to the college. मैं college कभी नहीं गया. But I enroll myself as a private student, जो कि केवल एग्ज़ाम देता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ माई फैमिली दे कांट अफोर्ड वेरी हाई एजुकेशन और लाइक दैट. तो मैंने चूज़ किया कि एट वेरी फर्स्ट मैंने ये चूज़ किया कि चलो मैं 12th पास कर लिया है, नाउ आई कैन गेट ए पार्ट टाइम जॉब. मुझे पार्ट टाइम जॉब भी मिल सकता है. When first time I attempt to join a call center in Indore, and you know कि एक कॉल सेंटर को ज्वाइन करने के लिए दे जस्ट वांट स्पोकन इंग्लिश. ठीक है, बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती थी. 3,000, 4,000, 4,500 सैलरी हुआ करती थी. 8 आवर्स की ड्यूटी का 2006, 7, 8 का टाइम की मैं बात कर रहा हूँ. जब मैं वहाँ पर इंटरव्यू देने गया तो आई वॉज रिजेक्टेड. ठीक है, वंस आई वॉज रिजेक्टेड, सेकेंडली आई अगेन अटेम्प्ट, सेकेंड टाइम आई वॉज रिजेक्टेड, थर्ड टाइम मैंने ट्राई किया, आई वॉज रिजेक्टेड. कंटिन्यूसली रिजेक्शन टोल्ड मी और टॉट मी दैट आई मस्ट लर्न इंग्लिश. ठीक है,
एक दिमाग पे एक भारीपन आ गया कि यार इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती. व्हेन आई ट्राइड टू लर्न इट थ्रू रीडिंग डिक्शनरी, इट वाज नॉट यूजफुल फॉर मी. डिक्शनरी को पढ़ना मेरे लिए बिल्कुल यूज़फुल नहीं हुआ, क्योंकि लोग कहते थे कि आप सीख जाओ, आप वर्ड्स आपकी वोकेबुलरी बढ़ा लो, यू कैन देन यू कैन स्पोक इन इंग्लिश. ठीक है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ. मैंने इस डिक्शनरी पढ़ने की कोशिश करी, बट नो, देयर इज़ नो यूज़. ठीक है, उसका कोई यूज़ मेरे लिए नहीं रहा. देन व्हाट इज़ नेक्स्ट, ये मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था. तो आई मेट विद अ स्टूडेंट हु वाज स्टडिंग इन BA LLB. ठीक है, वो BA LLB में पढ़ रहा था. एंड आई मेट हिम ड्यूरिंग एन इंटरव्यू. एक इंटरव्यू के दौरान मैं उससे मिला, और इंटरव्यू होने के बाद अनफॉर्चुनेटली मुझे वो जॉब मिल गई. ठीक है, और वो जॉब थी डोर टू डोर सेल्स की. ठीक है, एक ऐसे ऑर्डिनरी व्यक्ति था, ठीक है, जिसने ऐसे ही अपना ऑफिस डाल लिया और कुछ चीज़ें जो है दिल्ली में वो बिकवाता था ताकि उसको एक अच्छा प्रॉफिट हो सके, और उसके लिए सस्ते बंदे उसको चाहिए होते थे, और हम वो सस्ते बंदे थे. ठीक है, मैंने ज्वाइन कर लिया. ठीक है, मैं उस बंदे के साथ डोर टू डोर जाता था, ऑफिस टू ऑफिस जाते थे. जैसे तैसे हमारा एक आध दिन हुआ है, थोड़ी अच्छी हमारी फ्रेंडशिप हुई. एंड वन डे व्हाट हैपन दैट कि इंदौर में आपने स्वदेश भवन देखा होगा. स्वदेश भवन में हिंदुस्तान टाइम्स का ऑफिस है. ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसका ऑफिस है. ठीक है, तो एक दिन हम वहाँ चले गए. तो वो बंदा थोड़ा सा दिल्ली में पढ़ा हुआ था, चेन्नई में पढ़ा हुआ था. उसकी एजुकेशन जो मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल थी, स्कूलिंग थी, वो चेन्नई और दिल्ली से हुई थी, और CBSE बोर्ड से वो था. तो डेफिनेटली उसके फादर भी एक एडवोकेट थे, उसका भैया डिफेंस में था, और वो भी अच्छा बंदा था. तो ही वॉज एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. बट मुझे तो अपना इंट्रोडक्शन देने में भी हिचकिचाहट होती थी कि मैं कैसे कहूँ कि माई सेल्फ इज़ दिस एंड ऑल दिस दोस थिंग. कुछ सेंटेंसेस मैंने रट लिए थे, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं हुआ. जब मैंने उसको ज्वाइन किया, उसके साथ हम गए, तो ही सडनली एंटर्ड इनटू द ऑफिस. हिंदुस्तान टाइम के ऑफिस में जो है वो घुस गया. द गार्ड वाज नॉट अवेयर अबाउट हिज एंट्री, बट सडनली जैसे वो कंसियस हुआ कि कोई बंदा जो है बिना परमिशन के अंदर चला गया, ही कट माई फ्रेंड एंड उसको बाहर लेकर आ गया एंड स्टार्ट टॉकिंग समथिंग इन इंग्लिश. दे बोथ वर टॉकिंग इन इंग्लिश, बट आई वॉज अनकॉन्शियस अबाउट देयर कन्वर्सेशन. उनका कन्वर्सेशन मुझे नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. एंड आई रियलाइज दैट ए गार्ड कैन स्पीक इन इंग्लिश, देन व्हाट विल बी माई फ्यूचर. ठीक है, मेरा फ्यूचर क्या होगा, ये मैंने एकदम से रियलाइज़ किया, और ये चीज़ मुझे सदमे की तरह लगी. देन आई आस्क्ड टू माई फ्रेंड दैट हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश. सो ही सजेस्ट मी दैट नो वरी. ठीक है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉलो मी. वंस व्हाट आई टोल्ड यू, यू शुड फॉलो मी. जो भी मैंने तुम्हें कहा सब चीज़ें भूल जाओ, और एक ही चीज़ ध्यान रखो कि मुझे फॉलो करो तुम. मैंने कहा ठीक है बॉस, लेट मी फॉलो यू. उसने कहा कि एट इनिशियल लेवल यू हैव टू लिसन माई एवरी वर्ड वेरी केयरफुली वेन एवर आई एम गोइंग टू टॉक विथ एनी बडी. किसी से भी मैं जब बात करूं तो तू मुझे बहुत ध्यान से सुनना. और मैंने स्टार्ट कर दिया कि ठीक है भाई, मैं सुन लेता हूं, इसमें भी कौन सी बड़ी बात है. जब इतनी सारी चीज़ें हो रही है, कहीं और किसी से सुनना पड़े उससे अच्छा तो यही है कि मैं तुझे सुन लूँ और सारी चीज़ें सीख जाऊँ. ठीक है, नेक्स्ट ऑफिस में हम गए एंड ही स्टार्टेड हिज स्पीच. उसने अपनी स्पीच स्टार्ट करी, डिलीवर करी. ठीक है, मैंने हर चीज़ें सुनी, 2 4 5 पिच से हो गई हमारी. उसके बाद उसने कहा कि नाउ लेट यू एंटर इनटू द ऑफिस. ठीक है, नेक्स्ट ऑफिस में अब तू एंटर होना, एंड देन जैसे मैंने बोला वैसा तू बोलने की कोशिश करना. मैंने बोला नहीं भाई, मैं कहाँ, मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा. उसने बोला डोंट वरी यार, मैं हूँ तेरे साथ. ठीक है, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो यू जस्ट मतलब हट जाना पीछे, एंड आई विल हैंडल ऑल थिंग. मैं हैंडल कर लूँगा, ऐसा उसने बोल दिया. मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि चलो ठीक है यार, बंदा कुछ तो कर रहा है. मैं गया, एक ऑफिस को नॉक किया. मैंने बोला कि मैं कम इन सर, और मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि हेलो सर, दिस इज़ महेश नागर एंड आई एम फ्रॉम दिस कंपनी एंड लेट मी शो यू समथिंग विच इज़ वेरी गुड. और ऐसे मैंने करके थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया. जैसे ही बंदे ने इंग्लिश में बोलना शुरू किया तो मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई. कहने का मतलब है कि कुछ भी चीज़ें मेरे दिमाग में आ नहीं रही थी कि वो बंदा क्या बोल रहा है और मैं क्या सुन रहा हूँ, और नाउ व्हाट वुड आई आंसर, मैं क्या आंसर दूँ, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आई. सडनली वो आ गया और उसने सारी चीज़ें हैंडल कर ली. उसके बाद से
लगभग 20 डेज़ और 1 मंथ हमने एक साथ काम किया, और एक साथ काम करते हुए मैंने हर जगह वहाँ पर ट्राई किया अपनी स्पोकन को, जहाँ पर मुझे लगता था कि सामने वाले बंदे जिससे मैं बात करने जा रहा हूँ वो इंग्लिश नहीं जानता है, ठीक है, उस बंदे के सामने मैंने इंग्लिश बोली, और जहाँ मुझे लगता था कि यहाँ पर इंग्लिश हो सकती है वहाँ पर मैं उसको धकेल देता था। तो इस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन जो है ना वो थोड़ा कंप्लीट हो गया ना। करना कुछ नहीं था, मैं जहाँ पर रहता था वहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा 2690, आप नोकिया का फ़ोन जानते होंगे, वो था, और उसमें FM चला करता था। तो FM में सुनता था 105 जो है मतलब जिस पे विविध भारती चलती थी, और एक और उसमें 102 और एक 105 था, 105 या 106 कुछ था, जिसमें कि ज्ञानवाणी चला करता था। ज्ञानवाणी पे रोज़ जो है 8 बजे के आसपास कुछ लेक्चर्स वगैरह आते थे इंग्लिश में। सो आई स्टार्ट टू हियर दैम, मैंने उनको सुनना शुरू कर दिया, ठीक है। नथिंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, जस्ट आई हैड लिसन दैम। मैंने उनको बस लेक्चर को सुनना शुरू कर दिया। मुझे पता चल गया कि हाउ टू प्रोनाउंशिएट पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है, पर्टिकुलर वर्ड को कैसे प्रोनाउंशिएट करते हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब आप बोलने जा रहे हो कुछ भी, तो आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इंप्रूव होगा, आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा। मैंने एक चीज़ तो सीख ली थी कि सडनली आई कांट स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट यूजिंग ए सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी, ठीक है। हिंदी का एक भी सिंगल वर्ड यूज़ किए बिना मैं इंग्लिश तो नहीं बोल सकता। एट वेरी फर्स्ट आई हाउ टू स्टार्ट विथ शॉर्ट सेंटेंसेस, स्मॉल सेंटेंसेस, समटाइम्स सम वर्ड्स आई शुड यूज़ एंड समटाइम सम सेंटेंसेस आई शुड यूज़, ठीक है। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि कहीं पर इंग्लिश कहीं पर हिंदी, ये सब कुछ जो है वो चलता है, क्योंकि मैं जिस बंदे के साथ रहा था उसने ये सारी चीज़ें मुझे सिखा दी थी। देन आई हैव ट्राइड अगेन इन ए कॉल सेंटर, ठीक है। कॉल सेंटर में मैंने ट्राई किया एंड आई गॉट सेलेक्टेड, ठीक है। सेलेक्ट हो गया क्योंकि मेरा कम से कम इंट्रोडक्शन तो अच्छा हो ही गया था, उस बेसिस पे मैं सेलेक्ट हो गया, ठीक है। वेयर आई हैड टू हैंडल सम डीलर और रिटेलर्स कॉल। तो MP का था, MP और छत्तीसगढ़, तो बहुत ज़्यादा बंदे नहीं मिलते थे। कभी 8-10 दिन में 5 दिन में एक आध बंदा आता था जो कि इंग्लिश में कन्वर्सेशन करता था। करना कुछ नहीं था। जैसा ही उसने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन मैंने अपने पोर्टल पे एंटर किया, कंप्यूटर में सामने मेरे उसका आंसर आया था, मैं उसको रीड करके और सारी चीज़ें बता देता था। नो एक्सप्लेनेशन, नथिंग, वो समझ जाता था क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी होती थी। धीरे धीरे मैंने कॉपी करना शुरू किया। जो एक कस्टमर बोलता था, दूसरे कस्टमर को वही बात मैं उधर टिका देता था। कहने का मतलब है कि इधर से कॉपी किया, इधर पेस्ट किया, इधर से कॉपी किया, इधर से पेस्ट किया। टोटली कॉपीकेट मार्केटिंग का जो काम है वो चल रहा था, टोटली कॉपीकेट मार्केटिंग का काम चल रहा था, ठीक है। कॉपी किया एंड दिया, कॉपी किया एंड दिया। कुछ सेंटेंसेस याद रह जाते थे, कुछ भूल जाता था। अगेन जब दोबारा सुनता था तो यूज़ करता था। उन्हीं दिनों में कुछ दिन जॉब करते हुए हुआ, और सडनली एक मेरा कलीग था, उसने मुझे बोला कि वो LIG के पास, जो आपने परदेसीपुरा देखा होगा, अगर आप इंदौर के स्टूडेंट हैं तो परदेसीपुरा के पास ही रहता था, वहाँ से आता था। उसने बोला कि वाई नॉट वी शुड ज्वाइन ए स्पोकन इंग्लिश क्लास। मैंने बोला क्यों नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अब अपने पास थोड़ी बहुत सैलरी वैलरी भी आ रही है, तो हम वी कैन पे द अमाउंट, द फीस ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो आपने इंसिसिव का नाम सुना, अगर आप इंदौर के स्टूडेंट हैं तो इंसिसिव एक क्लास हुआ करती थी जहाँ पर क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज है, प्रेस कॉम्प्लेक्स के पीछे जहाँ क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज है उसके जस्ट सामने वाली बिल्डिंग में इंसिसिव एक क्लास हुआ करती थी। तो हमने उसको ज्वाइन कर लिया। एक दिन हमने ज्वाइन किया और वहाँ पर जो भी टीचर थे उन्होंने हमें यूज्ड टू का यूज़ सिखाया। क्या सिखाया? यूज्ड टू का यूज़, कि कब हम यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, वो यूज्ड टू का यूज़ हमने सिखाया 1 घंटे तक। कुछ हमें आके और सामने आके बोलने की भी उन्होंने कहा, हमने बोलने की कोशिश भी करी, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश, गलत सलत जो भी आता था वो बोल दिया। एक दिन हमने क्लास ज्वाइन करी, दूसरे दिन हम जा नहीं पाए क्योंकि क्लास का टाइम जो है मॉर्निंग 7 AM था। हम वी वर अनेबल टू ज्वाइन दैट क्लास। फिर कई दिनों तक उनका कॉल आता रहा कि भैया आइए, आपका फ़ीस भी आपने 1000 रुपये पे कर दी है और अभी नई क्लास है, नई बैच है। हमने 1 दिन और हम गए और 2 दिन हमने क्लास ज्वाइन करी एंड देन आई हैव लर्न माई इंग्लिश। ठीक है, मैंने अपनी इंग्लिश सीख ली। बट दैट वॉज नॉट अ टाइम व्हेन आई वॉज एबल टू स्पीक इन फ्लुएंट इंग्लिश। ठीक है, मैं वो समय भी नहीं सीख पाया था। धीरे धीरे मैंने 1 साल तक उस कॉल सेंटर में काम किया और फिर मैंने उसको छोड़ दिया। देन आई ज्वाइंड अनदर कॉल सेंटर विच वॉज फर्स्ट सोर्स लिमिटेड। फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, अगर आप इंदौर के स्टूडेंट हैं तो विजयनगर स्क्वायर के पास एक बिल्डिंग है मंगल सिटी। मंगल सिटी में फर्स्ट सोर्स करके एक कंपनी है जहां पर एयरटेल DTH का कॉल सेंटर मैंने ज्वाइन किया एंड आई
फाउंड ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी वेयर, ठीक है, मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली बिकॉज वहाँ पर एयरटेल डीटीएच के पूरे थ्रू आउट इंडिया से कॉल आते थे। तो सम कस्टमर्स जो है वो इंग्लिश में बात करते थे, कुछ हिंदी में बात करते थे, कुछ गुजराती वगैरह या तेलुगु तमिल में बात करते थे। तो वहाँ पर थोड़ा डेली ऐसा हो गया था कि 4 5 10 कस्टमर्स को इंग्लिश में हम हैंडल करते थे। फिर सडनली क्या हुआ कि इंग्लिश के कॉल्स का फ्लो जो है वो IVR पे आप चूज़ करते हो ना कि लैंग्वेज चूज़ करिए हिंदी या इंग्लिश, तो वहाँ पे इंग्लिश चूज़ करने वाले कस्टमर्स थोड़े ज़्यादा आना शुरू हुए। तो ऑफिस मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि क्यों ना कुछ बंदों को सेलेक्ट किया जाए जिनकी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक है और उनके लिए हम इंग्लिश की प्रायोरिटी फर्स्ट रख दें कि उनके पास सारे इंग्लिश के कॉल चले जाएँ। उसके लिए एक इंटरनल इंटरव्यू जो है कंपनी ने लिया और वहाँ पर मैं सेलेक्ट हुआ कि यहाँ पर भैया इंग्लिश में तुम कुछ हैंडल कर सकते हो। इस बीच में एक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला मेरा एक फ्रेंड मिला, उसके साथ मैंने थोड़े दिन बिताए, ठीक है, सुबह शाम उसके साथ घूमता था। ही वॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसकी इंग्लिश भी बढ़िया थी, वो भी मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टिप्स देता रहता था। एंड आई यूज टू स्पीक इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ हिम सो दैट ही कैन सजेस्ट मी कि कहाँ पर तू गलत है, कहाँ पर सही है। एंड टोटली मैं आपको बता दूं कि टोटली जो है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यू शुड स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। कहानी आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास इंग्लिश प्रायोरिटी के कॉल आना शुरू हुए। नाउ अभी मेरे पास दिन भर में जो भी 300-400 कॉल आते थे सभी इंग्लिश के कॉल हुआ करते थे, ठीक है। कुछ कॉल को छोड़कर सभी इंग्लिश के कॉल हुआ करते थे। मैं थोड़ा और ज़्यादा बोलने लगा। मेरा जो हेजिटेशन था वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुका था। देन आई लेफ्ट दैट कंपनी एंड आई ज्वाइन अनदर कंपनी। उसका नाम आपने बगल में ही मंगल सिटी के बगल में एक मेट्रो टावर करके बिल्डिंग है, उसमें एक कंपनी थी कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च लिमिटेड। वो कंपनी जो एक एडवाइजरी फर्म हुआ करती थी। एडवाइजरी फर्म किसमें जो शेयर और कमोडिटी में जो एडवाइस देते हैं वो थी। एंड ऑन दैट टाइम आई पास्ड माई एम.कॉम मैं कर चुका था उस समय, तो मैंने ज्वाइन की। एंड वहाँ पर आप जानते हैं निफ्टी सेंसेक्स वगैरह या शेयर वगैरह स्टॉक वगैरह को जानने वाले डेफिनेटली एजुकेटेड पर्सन होते हैं, ठीक है। तो कई सारे लोग आते थे और वहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि आपको एक कस्टमर से कितनी देर बात करना है। वहाँ पर वी आर फ्री कि अगर आप 4 घंटे एक कस्टमर से बात करना चाहे करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बिजनेस लेके आइए। दैट वाज द टारगेट, ठीक है। सो आई यूज टू स्पोक इन इंग्लिश। मैंने स्पीक इन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में बोलना शुरू किया, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा और इम्प्रूव हुआ। वहाँ के मैनेजर्स थे, दे वर ऑल MBAs, ठीक है, अच्छे कॉलेज से MBAs करके आए हुए लोग थे। तो कलीग्स थे वो भी MBAs थे। मैं ही एक अपवाद था कि वहाँ पर कुछ एक लोगों में, जिसमें कि मैं जैसे B.Com ग्रेजुएट या M.Com रनिंग मेरा था, थोड़ा थोड़ा वहाँ पर इम्प्रूव हुआ। एंड दैट वाज द टाइम कि उसके बाद मेरी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी हो गई मतलब। एंड व्हेन आई लेफ्ट इंदौर एंड कैम टू माय विलेज, आई थॉट दैट आई डिसाइडेड दैट आई शुड कल्टिवेट, या मैं एक फार्मर ही बनूं। तो ये जो खेती आप देख रहे हैं इसमें मैंने कुछ 6 महीने तक काम किया एज ए फुल फार्मर। Some of my friends insisted me to join a school, and I joined that school and start to teach English, ठीक है। मैंने वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। देन डेली रीडिंग और डेली जो चीज़ें होती है वहाँ पर भी मैं इंग्लिश यूज़ करता था अपने स्टूडेंट के सामने, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे प्रिंसिपल्स थे, दे इंसिस्टेड दैट यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। देन आई यूज टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। मैंने वो किया, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती रही और मेरी इंग्लिश जो है वो ठीक ठाक होती चली गई। और इस पूरी स्टोरी में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस पूरी स्टोरी में हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ हुआ ये है कि मैंने डिसाइड कर लिया दैट आई शुड लर्न इंग्लिश, ठीक है। मुझे इंग्लिश सीखना है, मैंने ये डिसाइड कर लिया, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं किया। अब मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ कि यदि आप बोलना सीखना चाहते हो तो आप बैठे बैठे बोल सकते हो क्या? आई मीन टू से कि आप चुप रहकर सीख सकते हो क्या? नो, ठीक है। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दैट विदाउट कॉपी, विदाउट पेन, विदाउट बोर्ड, you can learn spoken English. As you know that you have born in a region where Hindi is our mother tongue, or the local languages are spoken fluently, right? So how can I improve my English? Because I have no basic knowledge about it. Okay, no problem. Do you have basic knowledge of your own mother tongue?
डू यू नो द होल ग्रामर ऑफ हिंदी और योर लोकल लैंग्वेज, लोकल जो बोली होती है, डायलेक्ट, उसका बारे में पता है आपको क्या, कि उसकी ग्रामर क्या है, उसका क्या चीज़ें हैं, ये आपको पता है क्या? नो, you didn't have any idea when you was born in this world. you had nothing. ठीक है, आपके पास कुछ भी नहीं था कि क्या लैंग्वेज है, आपके पास कुछ नहीं था, आप मैं करते थे, रोते रहते थे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता था. somebody told you that this is your पापा, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके अंकल, ये रोटी है, ठीक है, ये पराठा है, ये पूरी है, ये पेड़ है, ठीक है, ये बबूल का पेड़ है, ठीक है, ये महुए का पेड़ है, ठीक है, ये पोल है, ये खंबा है, ठीक है, ये खेत है, ये मेड़ है, ये ऑल दीज वर्ड्स यू हैव लिसन रेगुलरली, आपने रेगुलरली इन वर्ड्स को सुना, एंड यू हैव यूज दैम इन योर कन्वर्सेशन, और उन कन्वर्सेशन में आपने उनको करना शुरू कर दिया, यूज करना शुरू कर दिया. दैट सेम थिंग कैन बी हैपन विथ योर इंग्लिश के साथ भी ये चीज़ हो सकती है भाई, ठीक है, बिल्कुल हो सकती है. इफ़ यू रियली वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, देन यू मस्ट स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश एट वेरी फर्स्ट. मैं क्या करता था, आईने के सामने खुद खड़ा हो जाता था, खुद के डायलॉग बोलता था और खुद ही डायलॉग का रिप्लाई भी करता था, ठीक है. मीन्स माई ओवन क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय माई सेल्फ, ठीक है, मेरे खुद के आंसर ही मेरे द्वारा, मतलब मेरे खुद के सवाल ही मेरे ही द्वारा आंसर किए जा रहे थे, ठीक है. सिंपल सी ट्रिक है. इफ़ यू आर अलोन हियर, देखिए यहाँ पर अभी गर्मी का टाइम है और कोई नहीं है, दूर तक, बहुत दूर तक कोई नहीं है, ठीक है. मैं चिल्ला के गाने गाऊँ, ठीक है, या मैं चिल्ला के बोलूँ. अभी मैं यहाँ बोला हूँ, बैठा हूँ, बोल रहा हूँ, कोई भी नहीं है यहाँ पर, और बिल्कुल एकदम साधारण से स्टैंड मेरा मोबाइल एक लकड़ी के डंडे पर रख दिया है, एंड नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ मोबाइल फोन एंड आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग ए वीडियो, एंड 25 मिनट इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए हो गया है. कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं. यू कैन यूज़ द सेम ट्रिक, ठीक है. सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ कि अगर आप वाकई में सीखना चाहते हो इंग्लिश को, तो यू हैव टू स्टार्ट ऑन डेली बेसिस. आई विल गिव यू सम सजेशंस, आई विल शेयर माई ओन एक्सपीरियंसेस. आपको क्या प्रॉब्लम आती है, यू शुड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए किस तरह की प्रॉब्लम आती है. डेफिनेटली आई विल मेक यू अवेलेबल द सॉल्यूशन, ठीक है. सॉल्यूशन मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा कि किस तरह से उस चीज़ों को हैंडल करें. आपको दिक्कत क्या आएगी, हम दिक्कत क्या लेते हैं, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि हम हिंदी में सेंटेंस सोचते हैं, देन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, देन उसको हम जो है वो क्या करते हैं, स्पीक करते हैं. दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट विल टेक टू मच टाइम. हर लैंग्वेज का अपना पैटर्न होता है, हर लैंग्वेज का अपना मतलब सेल्फ का, उसका खुद का मैकेनिज्म होता है, सेंटेंस का पैटर्न होता है. आपने सुना होगा क्रिया, कर्म, कर्ता, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको सीखना होगी, ठीक है. ये चीज़ें जब आप सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रामर जो है ना वो बहुत क्रिटिकल है. एंड वी कांट लर्न स्पोकन इंग्लिश विद द लर्निंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर. ग्रामर सीख कर आप इंग्लिश या हिंदी नहीं सीख सकते हो बोलना, ठीक है. I know that I am a teacher, but unfortunately I am not fully aware about the grammatical structure of Hindi और English both. ठीक है, दोनों ही का नहीं पता है मुझे. मैं तो लिटरली आपसे बोल रहा हूँ कि दोनों ही का नहीं पता है मुझे. एंड आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, ठीक है, कि बिना हेजिटेशन के मैं सब कुछ बोल दूँ. हाँ, पहले से थोड़ा पिच तैयार कर लिया तो डेफिनेटली आई कैन स्पीक, बट अगर पहले से पिच नहीं तैयार करी है तो सडनली बहुत सारे वर्ड्स है यार, सडनली कई सारे वर्ड्स नहीं आएंगे. अल्टरनेटिव वर्ड्स यूज़ करना पड़ते हैं, ठीक है. जब आप रेगुलर यूज़ करोगे तो अल्टरनेटिव वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो. आप सोचते हो सर हमने ट्राई किया कुछ हॉलीवुड मूवीज़ को सुनने के लिए, दे आर स्पोकन लाइक वी डिडंट गेट एनीथिंग, है ना. जब हम हॉलीवुड मूवीज़ को देखते हैं, उनके इंग्लिश जो सेंटेंस वो स्पीक करते हैं, हमें समझ में आया कैसे आएगा भैया. तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि फोनेटिक्स जो होती है, उस फोनेटिक्स को आपको लर्न करना पड़ेगा उन लोगों को सुनने के लिए. तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. जब आप सीखेंगे कि ब्रिटिश इंग्लिश में फ्यूचर को कैसे पढ़ते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में फ्यूचर को कैसे पढ़ते हैं. वी आर इंडियंस एंड वी हैव आवर ओवन टंग, ठीक है. हमारी अपनी टंग है, हमारी अपनी स्टाइल है, स्पोकन स्टाइल हमारी अपनी है. सो वी हैव अ डिफरेंट टंग, सो वी डेफिनेटली वी विल स्पीक डिफरेंटली, ठीक है. हम डिफरेंटली ही बोलेंगे. अगर आप ब्रिटिश में जाओगे तो कुछ रफ साउंड होता है, जैसे कि आप एक सिंपल सी वर्ड में बताता हूँ, फ्यूचर, ठीक है. आप बोलते हो फ्यूचर, ठीक है. दे स्पोक फ्यूचर आओ फ्यूचर पीपल. ओके, हाउ आप कैसे बोलते हैं, पीपल, वो बोलते हैं पीपल, आप बोलते हैं पीपल.
आप बोलते थैंक यू, वो बोलते थैंक यू, ठीक है, कहीं ना कहीं डिफरेंस है, कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तो आप इनिशियल लेवल पे अगर ट्राई करने जाओगे ना कुछ हॉलीवुड मूवी देखने वगैरह का, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। नो नो, यू शुड नॉट वॉच दैम, यू शुड वॉच डीडी न्यूज़ चैनल। मैं आपसे कह रहा हूँ डीडी न्यूज़ चैनल देखिए आप, ठीक है, आधा घंटा आप देखिए, इंग्लिश न्यूज़ चैनल आता है, गज़ब की इंग्लिश बोलते हैं और गज़ब का क्लैरिफिकेशन रहता है, गज़ब का कम्युनिकेशन रहता है। ईच एंड एवरी वर्ड आपको समझ में आएगा, आपको सुनाई देगा। एंड नाउ यू हैव टू ट्राई टू कॉपी जस्ट 1 2 3 सेंटेंसेस वॉट एवर यू कैन। आपकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से 2-3 सेंटेंस को आप कॉपी कर लीजिए एंड देन यूज़ दैम, यूज़ करिए आप, ठीक है, यूज़ करिए अपने फ़ोन ए फ्रेंड एंड आस्क हिम टू टॉक यू इन इंग्लिश, ठीक है, वीडियो को शेयर करिए आप, ठीक है, उस फ्रेंड के साथ कि देख भाई यहाँ पर थोड़ी सी टिप्स मिल रही है, कुछ अच्छा मिल रहा है, विदाउट कॉपी पेन जो है वी कैन लर्न इंग्लिश, सो दैट वी वाई शुड नॉट वी ट्राई, ठीक है, हम ट्राई क्यों नहीं करें, हमें ट्राई करना चाहिए डेफिनेटली वंस। अभी देख रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से इस 25 मिनट के वीडियो में कई बार इंग्लिश बोला हूँ और कई बार मैंने स्पोक वर्ड का यूज़ कर लिया, दैट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज़, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। स्पोकन में, स्पोकन इज दैट लैंग्वेज विच इज़ नॉट ए कंप्लीट लैंग्वेज, वी कैन से दैट स्पोकन इज ए ब्रोकन लैंग्वेज, ब्रोकन होती है। वंस यू विल गेट कॉन्फिडेंस देन यू विल स्टार्ट मीन्स फ्लुएंट, ठीक है, आप फ्लुएंट हो जाओगे, यू विल बी फ्लुएंट, आप फ्लुएंट हो जाओगे विदाउट हेजिटेशन, विदाउट थिंकिंग एल्स और वेल्स, आप जो है वो सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो सेकंड डे I will bring something new, something means I can say amazing things about spoken English. So stay with my channel, just subscribe this. If you find that this is the good channel and I am a good teacher, I can really help you. अगर आपको ऐसा लगता है, just like it, share it, and you whatever you problem you have, you should just make a comment, ठीक है, write a comment so that I will be prepare myself that what kind of problem you are facing, ठीक है, किस तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही है, मैं भी वो समझ पाऊँ और मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ी प्रिपरेशन करके आपको अवेलेबल, कुछ दिन तक हम ऐसे ही इन द लेप ऑफ नेचर में वीडियो आपको अवेलेबल करवाऊंगा। देन अगर बोर्ड की ज़रूरत पड़ी तो उस पर भी अवेलेबल करवाऊंगा डेफिनेटली। आई डोंट थिंक कि स्पोकन के लिए बोर्ड की और इस तरह की कोई ज़रूरत पड़ेगी, कोई कॉपी की पेन की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ रूल्स मैं आपको लिखवाऊंगा। द फर्स्ट रूल इज़ द थंब रूल, वी कैन से दिस इज़ द थंब रूल दैट इफ़ यू रियली वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश यू हैव टू स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, दैट इज़ द थंब रूल। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में बोलना शुरू करना पड़ेगा, दैट इज़ द थ्योरी एंड दैट इज़ द फुल प्रूफ रूल। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। नेक्स्ट डे अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेकर हम मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।